Welcome all. I am Rishita Rahate, an undergraduate from IIT Delhi. In this concept video, I am going to explain about the fundamental concepts in organic reaction mechanism. Chapter is Organic Chemistry, some basic principles and techniques. Chemistry class 11th. Introduction. In an organic reaction, the organic molecules, also referred as substrate, reacts with appropriate attacking reagent and leads to formation of one or more intermediate and finally product or products. The general reaction is depicted as follows. तो एक ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल जिसे सबस्ट्रेट कहते हैं वो अटैकिंग रिएजेंट से रिएक्ट करता है और इंटरमीडिएट बनता है और फाइनली एक फाइनल प्रोडक्ट बनता है या प्रोडक्ट्स और साथ में बाय प्रोडक्ट्स भी बन सकते हैं. A sequential amount of each step describing details of electron movement, energetic during bond cleavage and bond formation, and the rates of transformation of the reactants into products, kinetics, is referred to as reaction mechanism. Fission of a covalent bond. A covalent bond can get cleaved either by heterolytic cleavage or homolytic cleavage. तो कोई भी कोवेलेंट बॉन्ड दो तरह से क्लीवेड हो सकता है, हेटेरोलाइटिक या फिर होमोलाइटिक. हेटेरोलाइटिक की अगर बात करें तो in this the bond breaks in such a fashion that the shared pair of electron goes with one of the fragments. Example, AB अगर एक बॉन्ड है इसमें B ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो A प्लस और B माइनस में बॉन्ड ब्रेक होगा. इसमें जो इलेक्ट्रॉन पेयर थे बॉन्ड में वो किसी एक एटम के पास ही चले गए. जैसे इस केस में बी के पास गए क्योंकि बी ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव था. तो सेकेंड एग्जाम्पल में बी लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव था तो ए के पास जो शेयर इलेक्ट्रॉन्स थे वो चले गए, तो इसलिए इसे हेटेरोलाइटिक फ्यूजन कहेंगे. कार्बन bearing a positive charge is called carbocation and a carbon bearing negative charge is called carbon ion. Heterolytic fission generally takes place in polar covalent molecules, but in non-polar molecules it takes place in presence of catalysts like AlCl3 anhydride, FeCl3 anhydride, etc. तो heterolytic fission जनरली पोलर कोवेलेंट मॉलिक्यूल्स में होता है, पर नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स में भी हो सकता है अगर कैटलिस्ट प्रेजेंट हो तो. अभी बात करते हैं होमोलाइटिक फ्यूजन की. In this, one of the electrons of the shared pair in a covalent bond goes with each of the bonded atoms. The neutral chemical species thus formed is called free radical. Generally, homolytic fission takes place in non-polar covalent molecules in presence of sunlight or high temperature. तो होमोलाइटिक फ्यूजन में जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं किसी बॉन्ड में वो इक्वली डिवाइड होता है दोनों एटम्स में. जैसे ए बी बॉन्ड है तो उसके शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ए में भी है, ए में भी डिवाइड हुआ है और बी में भी हुआ है, जिसे फ्री रेडिकल कहते हैं. Free radicals are highly reactive
न्यूट्रल एंड इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट स्पीशीज। अभी बात करते हैं अटैकिंग एजेंट्स की। तो अटैकिंग एजेंट्स दो टाइप के होते हैं, इलेक्ट्रोफाइल्स और न्यूक्लियोफाइल्स। तो इलेक्ट्रोफाइल्स, these are electron deficient species, that is, they behave as Lewis acids. The following species behave as electrophiles. All non-metal cations and metal cations which have vacant d orbitals. Example Cl+, NO2+, CH3CO+, etc. Lewis acids, example BF3, ZnCl3, ZnCl2, anhydrous, FeCl3, AlCl3, carpene, etc. Third, non-metal और एसिडिक ऑक्साइड्स, एग्जाम्पल CO2, SO2, एक्सेट्रा। तो ये जो हमने तीन कैटेगरीज देखे हैं वो ये तीनों इलेक्ट्रोफाइल्स में आते हैं। ये बात करते हैं न्यूक्लियोफाइल्स की। These are electron rich species, that is, they behave as Lewis bases. These attack at electron deficient area. Following species behave as nucleophiles. All anions, example Cl minus, NH2 minus, OH minus, etc. Lewis bases, example NH3, H2O, ROR, ROH, etc. Benzene, alkenes, etc. तो ये थे न्यूक्लियोफाइल के कैटेगरीज और एग्जांपल्स। Nucleophilicity order is H minus is greater than CH3 minus, greater than NH2 minus, greater than RO minus, greater than OH minus. In case of same nucleophilic site, nucleophilicity parallels basicity. That is, as the basicity increases, nucleophilicity also increases. तो अगर बेसिसिटी इंक्रीज हो गया तो न्यूक्लियोफिलिसिटी भी इंक्रीज होता है, मतलब न्यूक्लियोफिलिसिटी बेसिसिटी से प्रोपोर्शनल है होता है। इंडक्टिव इफेक्ट, it is just like shifting of shared pair of electrons in polar covalent molecules. If shared pair is more shifted towards the more electronegative atom, the less electronegative atom acquires light positive charge and more electronegative atom acquires partial negative charge. तो एग्जाम्पल में अगर देखा तो जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स थे CH3Cl बॉन्ड के, वो शिफ्ट हो रहे हैं Cl की तरफ क्योंकि Cl ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है इस एग्जाम्पल में। तो जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है वो Cl की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं, इसलिए CH3 पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ रहा है और Cl पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ रहा है। इट इज़ अ परमानेंट इफेक्ट and propagates through carbon chain. Atoms or group having greater electron affinity than hydrogen are said to have electron attracting or negative inductive effect, while that having smaller electron affinity than hydrogen are said to have electron releasing or positive inductive effect. तो inductive effect में भी negative और positive में डिवाइड करते हैं। जो नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट होता है वो उसके एटम्स इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हाइड्रोजन से ज़्यादा इफेक्टिव शो करते हैं, तो इसलिए उसे इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग और नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट कहते हैं। और उसके अपोजिट
पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट होता है। इस एग्जांपल में Cl has minus I effect and alkyl group has positive I effect। तो जैसे Cl ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है इस केस में, तो इसलिए Cl पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ रहा है, और जो अल्काइल ग्रुप है उसमें पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ रहा है। तो इसलिए Cl माइनस आई शो कर रहा है और अल्काइल ग्रुप पॉजिटिव आई शो कर रहा है। तो ऑर्डर ऑफ ग्रुप प्रोड्यूसिंग माइनस आई इफेक्ट इज R3n plus is greater than NO2 is greater than Cn is greater than SO3H greater than CHO greater than CO greater than COOH greater than F। तो जो हैलोजेंस है वो काफ़ी पीछे आते हैं इस ऑर्डर में, और ये जो है ये सारे हाइड्रोजन से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी शो करते हैं। ये ऑर्डर ऑफ ग्रुप्स प्रोड्यूसिंग पॉजिटिव आई इफेक्ट अगर देखें तो O माइनस का सबसे ज़्यादा होता है, फिर O माइनस इज ग्रेटर देन CO माइनस ग्रेटर देन थर्ड डिग्री अल्काइल ग्रुप greater than second degree alkyl group greater than first degree alkyl group greater than CH3 greater than hydrogen। अभी बात करते हैं इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट की। इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, it is defined as the polarity produced in the multiple bonded compound as the reagent approaches it. In the presence of attacking reagent, the 2 pi electrons are completely transferred to any the any of the one atom. This effect is temporary। तो मल्टीपल बॉन्डेड कंपाउंड्स में जब कोई रीजेंट अटैक करता है तो पाई इलेक्ट्रॉन्स किसी एक एटम को ट्रांसफर कर देता है, उसे इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट कहते हैं। तो इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट पॉजिटिव या नेगेटिव हो सकता है। तो पॉजिटिव तब होगा जब when displacement of electron pair is away from the atom, मतलब जो पाई इलेक्ट्रॉन्स मल्टीपल बॉन्ड के ट्रांसफर हो गए उस एटम पे जहाँ अटैकिंग रीजन बॉन्डेड है, अगर वहाँ पे पाई इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर हुए तो उसे पॉजिटिव ई टाइप बोलेंगे, और नेगेटिव ई टाइप उसे बोलेंगे जब पाई इलेक्ट्रॉन्स उस एटम को ट्रांसफर हो वहाँ जहाँ पे अटैकिंग रीजन बॉन्डेड नहीं है। एग्जाम्पल, अगर किसी इलेक्ट्रोफाइल ने इस कंपाउंड पे अटैक किया तो जो पाई इलेक्ट्रॉन्स ऑक्सीजन को ट्रांसफर हो जाएगी, न्यूक्लियोफाइल अटैक हो जाएगा रीजन, हाँ तो वो इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल है, सॉरी। Hyperconjugation, it involves delocalization of sigma electron of a CH bond of an alkyl group attached directly to an atom of unsaturated system or to an atom with an unshared pi orbital। This effect is also called as no bond formation or Baker-Nathan effect। तो ये जो सिग्मा बॉन्ड था CH का, उसका डीलोकलाइजेशन होता है
और उसे हाइपरकॉन्जुगेशन बोलते हैं। हाइपरकॉन्जुगेशन को बेकर-नाथन इफेक्ट भी कहते हैं, और या फिर नो बॉन्ड फॉर्मेशन। अब देखते हैं एप्लीकेशंस ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट। फर्स्ट, स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन्स। मोर द नंबर ऑफ अल्फा, ये अल्फा है, अल्फा हाइड्रोजन एटम्स मोर स्टेबल इज एल्कीन। तो इंडक्टिव इफेक्ट से हम ये बता सकते हैं कि जो एल्कीन दिया है वो कितना स्टेबल है। तो उस एल्कीन के जितने ज़्यादा अल्फा हाइड्रोजन एटम्स होंगे उतना ज़्यादा वो कंपाउंड स्टेबल होगा। जैसे यहाँ एग्जांपल में यहाँ 4 अल्फा हाइड्रोजन है, इस कंपाउंड में 3, इसमें 2, तो उसके अकॉर्डिंग उसकी स्टेबिलिटी हम बता सकते हैं। सेकेंड, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन। Greater the number of alkyl groups attached to a positively charged carbon atom, greater is the stability. तो इसमें कार्बोकैटायन जिस कंपाउंड में ज़्यादा स्टेबल हो, मतलब कार्बोकैटायन स्टेबल कैसे होगा, अगर ज़्यादा अल्काइल ग्रुप्स अटैच्ड हो कार्बोकैटायन से तो उस कंपाउंड की स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी। जैसे यहाँ पे 3 अल्काइल ग्रुप्स अटैच्ड हैं, इसमें 2, इसमें 1 और इसमें अटैच नहीं है, तो उसी ऑर्डर में उसकी स्टेबिलिटी है। Resonance effect. The resonance effect is defined as the polarity in the molecule by the interaction of two pi bonds or between a pi bond and lone pair of electrons present on an adjacent atom. The effect is transmitted through the chain. Positive resonance effect plus R. Electron donating groups with respect to conjugate system show positive R effect. Central atom of functional group should be more electronegative than surrounding atoms or groups to show positive R effect. Example halogens OH, OR, OCOR, NH2, NHCOR, etc. तो जो पोलैरिटी प्रोड्यूस होती है किसी 2 पाई बॉन्ड्स के बीच में या फिर एक पाई बॉन्ड और लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के बीच में, उसे रेजोनेंस इफेक्ट कहते हैं। पॉजिटिव रेजोनेंस इफेक्ट वो होता है जिसमें इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स हो, मतलब लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हो किसी एटम पे, जैसे OH में O के पास है, NH2 में N के पास है, जैसे एग्जाम्पल अगर देखें तो NH2 का जो नाइट्रोजन है वो लोन पेयर डोनेट कर सकता है, तो उसके डोनेशन की वजह से पूरे रिंग में इलेक्ट्रॉन्स डीलोकलाइज हो रहे हैं, तो उसे रेजोनेंस बोलेंगे। नेगेटिव रेजोनेंस इफेक्ट. Electron withdrawing groups are electron withdrawing groups with respect to conjugate system show minus R effect. Central atom of functional group should be less electronegative than surrounding atoms or groups to show minus R effect. Example halogens COH, COR, CHO, CN, NO2 etc. तो नेगेटिव रेजोनेंस के लिए इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स चाहिए, तो इसमें जो CO है मतलब कार्बन, वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा, तो उसकी वजह से इलेक्ट्रॉन पूरे रिंग में इलेक्ट्रॉन डिलोकलाइज होगा, तो उसे नेगेटिव रेजोनेंस इफेक्ट बोलेंगे।
So that's all for this video. Thank you.